Good morning, students. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Are the slides visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. We will start right. Yes, ma'am. Okay. So till last class, we have seen the various metabolic pathways utilized in higher plants for the generation of secondary metabolites. ठीक है? तो जैसे कि आपने shikimic acid pathway you have seen acetate mevalonate pathway and the amino acid pathway. So today we will study about how we can investigate the various biosynthetic pathways by the utilization of radioactive isotopes. So this is the next part of this unit, that is study of utilization of radioactive isotopes in the investigation of biogenetic studies. So whatever the plants they are generating, the secondary metabolites, so how they are generating it, that also we can study. Okay. So for studying that, we have got various methods, or we have various technology by which we can study the biogenesis of various secondary metabolites inside the plant. But here, as per the syllabus, we will be focusing on the radioactive isotopes, how radioactive isotopes can be utilized to study the biogenetic pathways. So let us see. मैम स्लाइड विजिबल नहीं है. नहीं दिख रही है? स्लाइड नहीं विजिबल है? विजुअल है मैम. दिख रहा है मैम. विजिबल है, ठीक है. तो मे बी वो आपको इसलिए नहीं विजिबल हो पा रही है ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम. ठीक है, तब हेजीनेस आ जाती है स्लाइड्स में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो. तो अगर कुछ लोगों को दिखाई दे रही है तो इधर से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मे बी फ्रॉम योर साइड देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम. ठीक है. So this study of utilization of radioactive isotopes in investigation of biogenetic study, it means how the primary and secondary metabolites are formed in the plants. ठीक है, तो plants में ये जो हमारे secondary या primary metabolites बन रहे हैं, how they are formed inside it. ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए we will investigate by using these radioactive isotopes, or you can say that it is the elucidation of biosynthetic pathways, how the material it passes from one intermediate to another intermediate and finally into some product that can be elucidated. ठीक है, जैसे कि आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन, तो उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इनसाइड द प्लांट मटेरियल प्लांट, हाउ इट हैज बीन जनरेटेड, means how many steps it has undergone. That also can be studied. For example, we have digoxin which we obtained from digitalis, we have reserpine which we obtained from Rolfia serpentina. तो अब ये जो रिजर्पिन है ये स्टार्टिंग मटेरियल इसके लिए क्या था और बीच में इंटरमीडिएट्स क्या क्या बन रहे थे. ठीक है, तो ऑल दोज कैन बी ट्रैक्ड, उसको हम ट्रैकिंग कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. The various techniques which we can use, or mic किसी का ऑन है उसको स्विच अपना you mute it. ठीक है, so various techniques which we can use. अपना माइक तभी ऑन करा करिए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है इन विजिबिलिटी ऑफ द स्लाइड्स और माई ऑडियो प्रॉब्लम. ठीक है, तभी आप माइक ऑन करके आप थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं. So the various techniques are, the first one is tracer technique, that is by use of radioactive isotopes. So इसको हम कहते हैं tracer technique investigation. Second is use of isolated organs or tissues we can do. Parenchymatous cells वगैरह जो होते हैं plants में, उसके organs या tissues वगैरह isolate करके उसके through कर सकते हैं. The another technique is by the grafting method, and another technique is by the use of mutant strains. You can investigate the biogenetic studies, and finally you can use enzymatic studies. ठीक है, तो ये different techniques हैं जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, we can estimate or we can investigate the various biosynthetic routes which are taking place in the plants. Again, we have to focus simply on the
tracer technique in detail, but we will be seeing other techniques in brief also. So the various techniques used for investigation of biogenetic pathways are, first one we will see, because in brief we have to see all these, and lastly we will study the tracer technique, because that we have to study in detail. So first one is your using isolated organ or tissues. So this method, it is based on using isolated parts of the plant. So you have got stems, roots, and various other parts of the plant. So the parenchymatous tissue of shoots, leaves, roots or other parts of the plant, they are chosen. ठीक है, उसको हम लोग isolate करते हैं. And it is useful in determination of site of synthesis of a particular compound. If you want to study where this particular secondary metabolite, the synthesis of this secondary metabolite, it starts, whether it starts from root, whether it starts from leaves, or whether it starts from any other part of the plant. तो उसको भी पढ़ने के लिए, उसको जानकारी के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं टेक्निक, that is by using the isolated organ or the tissues of the plant. For example, roots and leaves, these are used for the study of Nicotiana and Datura. ठीक है, तो Nicotiana plant, you know, Nicotiana tobaccum और Datura plant भी आपने देखा है. तो इस plant की Nicotiana, you know that you obtain it from the main drug, you obtain from the leaves, and in case of Datura, you know, it is obtained from the roots of Datura. ठीक है, तो roots and leaves are used for the study of Nicotiana and Datura. Similarly, in case of rose, rose का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसमें होता है, रोज पेटल्स में होता है. सो यू विल बी सिलेक्टिंग द पेटल डिस्क फॉर द स्टडी ऑफ ऑयल ऑफ रोज. सिमिलरली वेरियस प्रोपेन एल्कोलाइड्स, दे आर फॉर्म्ड इन द रूट्स ऑफ सोलानेसी फैमिली. तो इस तरह से हम ये पता लगाने के लिए कि जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी ड्रग प्लांट में, वो कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, वेदर इट इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड इन रूट, whether it is getting synthesized in leaves or some other part. So to detect that particular site of synthesis, you can go for this technique, that is by use of isolated organ or tissues. So isolated shoots, example is isolated shoots and leaves, they can be maintained in a suitable sterile medium for studies on Nicotiana and Datura species. तो जिस तरह से आपने उसमें पढ़ा था टिश्यू कल्चर में, the same way here you will be maintaining this culture in sterile medium. जो भी आपने आइसोलेशन किया है शूट्स का, रूट्स का या लीव्स का, उसको आप स्टेराइल मीडियम में मेंटेन करेंगे for the study of Nicotiana and Datura species. In such type of studies on rooted leaves, to get large organization of roots, it facilitates the study of tobacco alkaloids for their biogenetic sites, which is generally considered to be roots. तो इनमें जो tobacco alkaloid है या आपका जो आपके प्रोपेन alkaloids हैं, तो इसका बेसिकली जब इन्होंने स्टडी करके देखा रूट्स और लीव्स वगैरह को और रूटेड लीव्स को, तो इस पे इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो बेसिक साइट है इनके alkaloids का, in case of solanaceous alkaloids or tobacco alkaloids, the main part which is responsible for the biogenesis of these secondary metabolites is roots, not leaves. The next method is by grafting method. तो इसमें grafting, as you know, grafting means कि एक जो प्लांट होता है उसका पोर्शन कट करके दूसरे प्लांट के ऊपर उसको ग्राफ्ट करके उस पे ग्रो किया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, दो स्पीशीज जो है हमने एक ही प्लांट में ग्रो कर दिया. अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे. सो ग्राफ्टिंग, व्हाट इज बेसिकली ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग इज एन ऑपरेशन इन विच टू कट सर्फेसेस ऑफ डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, दे आर प्लेस्ड सो एज टू यूनाइट एंड फर्दर ग्रो टुगेदर. ठीक है, तो एक ही जनरली फैमिली के लिए जाते हैं या थोड़ा सा क्लोजली रिलेटेड होंगे और चीज़ों में, तो ऐसे प्लांट्स आप सिलेक्ट करेंगे जो आप उसके ऊपर ग्रो करा पाएं दूसरे प्लांट के ऊपर. ठीक है, तो द मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग इज अ स्टॉक. उसको हम क्या कहते हैं, जो ज्यादा पोर्शन जिसका लिया जाता है उसको हम स्टॉक कहते हैं. द पोर्शन दैट इज कट ऑफ फ्रॉम अनदर प्लांट इज कॉल्ड एज scion. ठीक है, what is stalk and scion? I think somebody needs entry.
Yes. RS Pharma. Who is RS Pharma? मैं एंट्री नहीं दूंगी बिकॉज आप अपना नाम नहीं देते हैं। मुझे होगा शायद। नहीं, नाम देना चाहिए ना, जब आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि यू शुड। उसके में इशू आ रहा है है मैम, उसके में थोड़ा इशू आ रहा है एक्सेप्ट होने के लिए कुछ। किसका? ओजस्वी का मैम। ओजस्वी का? यस मैम। उसको दोबारा से बोलो रिक्वेस्ट भेजने के लिए। और अपना नाम चेंज करने के लिए बोलिए उसको। ओके मैम। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ग्राफ्टिंग क्या होता है, यानी कि दो सरफेसेस आपको चाहिए कट किए हुए, एक थोड़ा बड़ा पोर्शन होगा, ठीक है। तो मेजर पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक, और जिसका छोटा सा पार्ट कट किया होता है द पोर्शन दैट इज कट ऑफ फ्रॉम अनदर प्लांट, इट इज कॉल्ड एज सायोन, ठीक है। तो स्टॉक एंड सायोन यू मस्ट रिमेंबर, दिस इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ एल्कलॉइड फॉर्मेशन बाय ग्राफ्टेड प्लांट्स। तो जो भी हमने ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं हमारे पास में, उसमें हम लोग फॉर द हाउ दिस एल्कलॉइड इज जनरेटेड दैट इज स्टडीड ऑन ग्राफ्टेड प्लांट्स। फॉर एग्जांपल टोमेटो का सायोन लिया आपने, ठीक है, टोमेटो सायोन, दीज आर ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक ऑफ धतूरा, ठीक है। सो धतूरा आपको पता है कि उसमें एल्कलॉइड होता है, ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास में क्या प्लांट है, धतूरा प्लांट है, स्टॉक हमारा किसका है, धतूरा का है, और जो टोमेटो को सायोन्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कट करके धतूरा के प्लांट पे उसको ग्राफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे देखेंगे जब स्टडी करेंगे। सो दिस धतूरा प्लांट इट एक्यूमुलेट्स द ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, जबकि अगर हम इसका उल्टा करते हैं, सपोज करो हमारे पास क्या है, टोमेटो का प्लांट है, ठीक है, टोमेटो के प्लांट पे हमने क्या किया, धतूरा का जो है सायोन हमने उसके ऊपर ग्राफ्ट किया, ठीक है। तो इसमें जब हमने इसको ग्रो किया तो व्हाट वी सी दैट जो हमारे टोमेटो में बाद में हम लोगों ने इसको जब करके देखा एक्सपेरिमेंट, तो टोमेटो में जो एल्कलॉइड्स आएंगे दे वर वेरी नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कलॉइड्स दे वर फाउंड टू बी ऑन द धतूरा, क्योंकि उसमें क्या हुआ, टोमेटो के स्टेम पे या जहाँ पे भी आपने उसको ग्राफ्ट किया है तो वहां से दूसरा पेड़ किसका शुरू हो गया, धतूरा का, लेकिन बेसिकली नीचे रूट किसकी है, टोमेटो की है। तो जो आपने धतूरा में जो बाद में इस पे ग्रो किया टोमेटो के ऊपर, तो उस धतूरा से जब एल्कलॉइड्स देखे गए तो उसमें बहुत कम एल्कलॉइड पाए गए, जबकि इसका अगर हमने उल्टा किया हुआ था ऊपर वाला जैसे है, जिसमें कि हमने बेसिकली जो हमारा प्लांट है किसका है, धतूरा का है, और उसमें कट करके एक स्टेम पे हमने क्या किया, टोमेटो को ग्राफ्ट कर दिया था, ठीक है। एंड इन दैट केस जो इसमें हमने बाद में देखा कि एल्कलॉइड कितना है, तो इन दैट केस द एल्कलॉइड वाज मोर इन टोमेटो आल्सो, ठीक है। जो टोमेटो की उस पे हमने ग्राफ्टिंग कर दी थी, तो उसमें जब फर्दर ग्रो करके जब इसका एक्सट्रैक्शन किया गया टोमेटो का ही, तो उसमें हमने देखा कि धतूरा का जो कंटेंट है, दैट इज ट्रोपेन एल्कलॉइड्स का जो कंटेंट है टोमेटो की ब्रांचेस पे, दैट वाज मोर, बट व्हेन वी डू इट अदरवाइज तब ये इसमें नहीं था, ठीक है। सो दिस सजेस्ट दैट the main site for formation of datura alkaloids is root and not the other organs of datura, ठीक है। तो नीचे alkaloids बनाने के लिए datura को क्या चाहिए, उसके roots चाहिए, ना कि उसको shoot चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्राफ्टिंग से कैसे हम एक प्लांट की दूसरे को ऊपर करा के we can generate the alkaloid, and also we are seeing that basic part which is required for the genesis of these particular secondary metabolite we can find out कि इसमें जो है धतूरा अगर बन रहा है, धतूरा it is not not धतूरा, the tropane alkaloids which are synthesized in dhatura, this is mainly because of its roots, not because of its shoots. So ये हमारा हो गया grafting method. Next method is by the use of mutant strains. So mutant strains of lower plants like fungi and microorganisms are produced in nature which lacks one or other enzymes
because of which the normal metabolic pathways are gently greatly affected. ये गलत टाइप हो गया थोड़ा, are greatly affected. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे लोअर प्लांट्स हैं, फंजाई या ऑर्गेनाइज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे विल लैक वन और अदर एंजाइम, एंड दीज एंजाइम्स दे आर वेरी मच नीडेड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवेज. तो अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो जिसका नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है, दैट विल गेट अफेक्टेड. इन सच म्यूटेंट स्ट्रेन्स the metabolites are found at the intermediate stage and needs artificial supply of another intermediate. तो जो इस टाइप के म्यूटेंट स्ट्रेन्स होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू प्रोवाइड द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ अनदर इंटरमीडिएट, क्योंकि जो इसमें इंटरमीडिएट बन रहा था उस पर्टिकुलर स्टेज पे, तो वो प्रॉपर वे में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दीज एंजाइम विच वाज रिक्वायर्ड, जैसे कि अभी आप लोगों ने पिछले जितने भी पाथवेज देखे हैं तो कहीं ना कहीं उसको एंजाइम चाहिए. ठीक है, तो ऑल दोज एंजाइम्स इफ इट इज लैकिंग एट सम ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज, दैट यू हैव टू प्रोवाइड. ठीक है, तो यू हैव टू प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल सप्लाई. सच म्यूटेंट स्ट्रेन्स कैन बी यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक स्टडीज ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स. तो अब हमको पता है कि ये वाला जो है इस पर्टिकुलर स्टेट पे अगर इसको ये एंजाइम नहीं मिलेगा तो ये इंटरमीडिएट हमारा नहीं बनेगा. तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर स्टेज पे क्या कहते हैं उसको, वो चीज प्रोवाइड करा सकते हो, सो दैट यू कैन स्टडी दैट एट विच पर्टिकुलर पॉइंट we can provide this enzyme and we can get the another intermediate. तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, you can investigate the various intermediates which are forming inside the plant. The biogenetic pathways, example is the biogenetic pathways of gibberellins are mostly similar in both higher plants and Gibberella fusicoroi. ठीक है, तो अगर जो जिबरलिन्स हमारे हायर प्लांट्स में भी बनते हैं और आपके फंगस में भी बन रहे हैं, दैट इज जिबरला फ्यूजिकोराई, तो जो बेसिक पाथवे है उसका फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जिबरलिन्स इन फंगस एज वेल एज इन हायर प्लांट्स, तो बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर. द म्यूटेंट स्ट्रेन्स जिबरला कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन वैरायटी ऑफ नोवेल C20 isoprenoid compounds which are produced at the level of geranyl pyrophosphate इन मेवलोनिक एसिड पाथवे. तो ये जो हमने पढ़ा था मेवलोनिक एसिड पाथवे में जहाँ पे आपका जेरेनिल पायरोफॉस्फेट बना था, सो फ्रॉम दैट स्टेज यू कैन ऑब्टेन C20 आइसोप्रीनॉइड कंपाउंड्स फ्रॉम जिबरला, अगर इस टाइप से आप इसमें एंजाइम प्रोवाइड करा सकें. सो दीज म्यूटेंट स्ट्रेन्स कैन प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स ऑफ diverse nature. From these mutants you can further produce various amino acids. When the rye plant is introduced with the spore culture of these mutant strains, the sclerotia produced demonstrates the blockages of biogenetic pathway of certain intermediates and thereby the accumulation of specific alkaloids, that is ergot alkaloid is blocked. तो इस तरह से जब आप म्यूटेंट स्ट्रेन्स देते हैं, यू कैन गिव अ ब्लॉकेज टू द biological pathway of various intermediates also. Even you can block the synthesis or of particular alkaloid, for example ergot alkaloid. So how you can use the mutant strains to study the various intermediates or the various intermediate stages during the biosynthetic pathway. Then next जो आपके syllabus में है technique, that is the tracer technique. So what is tracer technique? So as the name suggests, tracer means you have to trace. So this technique is going to help you in tracing the biosynthetic pathway. So this technique, it utilizes the labeled compound to find out or to trace different intermediates and various steps in biosynthetic pathway. तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज द लेबल्ड कंपाउंड्स. ठीक है, लेबल्ड कंपाउंड्स. रेडियो ट्रेसर टेक्निक, इट इज अ टेक्निक डन बाय यूजिंग रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स. ठीक है, तो यू विल बी यूजिंग रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स टू फाइंड आउट or to trace
various precursors, various intermediates which are involved at different stages of biosynthetic pathway at a given rate and at a given time. तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अंदर बायोसिंथेटिक पाथवे चल रहा है प्लांट के अंदर, उसमें हमारा प्रिकर्सर क्या था, ठीक है, और हमारे क्या क्या इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उसके बीच में. तो ऑल दीज कैन बी ट्रेस्ड आउट और दे कैन बी फाइंड आउट बाय यूज ऑफ रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स. Just I am stopping here. I got a message from Neelam. Every time she is not able to get the link. Wherever I have sent to all. Just be there. See, you are seeing her email also. I've sent it her also. Yes. So tracer technique में क्या होता है कि you require radio labeled isotopes which will trace out the various starting materials and the intermediates which are involved at the various steps at a given particular rate and at a given particular time. So what are radio labeled tracer? So these radio labeled tracers, these are the compounds when one or more atom of a chemical compound is replaced by radioisotopes used for the study of biosynthetic pathway. These are known as radio tracers. तो अब इस डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि ऐसा कोई कंपाउंड, कोई केमिकल कंपाउंड जो हमारे बायोसिंथेटिक पाथवे में यूज हो रहा होगा, ठीक है. सपोज करिए फॉर एग्जांपल इन शिकेमिक एसिड पाथवे व्हाट यू आर यूजिंग, सपोज एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट, वो उसका स्टार्टिंग मटेरियल है. तो उस एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में क्या क्या एटम्स हैं, ठीक है. उन एटम्स में एक एटम को हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, हटा के उसको रेडियो लेबल्ड एटम उसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है. एंड दैट विल बी इंसर्टेड, दैट पर्टिकुलर एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट दैट विल बी इंसर्टेड इनटू द प्लांट. और फिर वो क्या करेगा, जो यूजुअल पाथवे है उसको अडॉप्ट कर लेगा. ये देखने के लिए कि एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, क्या जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जनरेट हो रहा है लास्ट में, उसके जेनेसिस में ये एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट की कोई भूमिका है या नहीं. अगर उसकी भूमिका है उसमें जेनेसिस में, तो क्या होगा, वो लास्ट तक क्या होगा, जो उसमें रेडियो एक्टिविटी है जो हमने इंट्रोड्यूस किया था विद द यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप, दैट रेडियो एक्टिविटी विल बी सीन इन द प्रोडक्ट ऑल्सो और ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट ऑल्सो, ठीक है. और अगर नहीं है तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे वो हट जाएगा. एंड देन वी कैन से दैट जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो उसके जेनेसिस में एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना. इससे हमें ये स्टडी कर सकते हैं. सो दीज आर द कंपाउंड्स व्हेन वन और मोर एटम ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय रेडियोआइसोटोप्स. इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस स्टडी ऑफ बायोसिंथेटिक pathway. So these are called as radio tracers. When these labeled compounds are administered into the plants, ठीक है, इनको रेडियो लेबल्ड कर लिया आपने पर्टिकुलर कंपाउंड को, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, we will administer into the plants. They become a part of general metabolic pool and undergo reactions characteristics to the metabolism of that particular plant. तो ये जो पीछे अभी मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन करी, द सेम थिंग, कि आप क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसको रेडियो लेबल कर लिया, और उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, यू विल एडमिनिस्टर्ड इनटू द प्लांट, एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड व्हिच यू हैव लेबल्ड, दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, and it will adopt the same reaction or it will undergo the same reaction which are very much characteristic to the
same metabolism which is taking place in that particular plant. तो साइड बाय साइड क्या हो रहा है, आपने अलग से एक एक्सपेरिमेंट लगा दिया प्लांट के अंदर ही, ठीक है। प्लांट जो है अपने नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे से वो पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो जनरेट कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया कि ये जेनेसिस जो हो रही है प्लांट के अंदर में वो किस मेटाबॉलिक पाथवे से हो रही है उसको स्टडी करने के लिए क्या किया आपने, बिकॉज वी नो द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर दिस पर्टिकुलर secondary metabolite, so that particular precursor or the starting material it has been labeled, ठीक है, labeled with the isotope, और उसके बाद उसको आपने जब एडमिनिस्टर किया एंड दोनों सिंथेटिक पाथवेज को आप क्या करेंगे, सॉरी बायोसिंथेटिक पाथवे को कंपेयर करेंगे एंड देन यू कैन स्टडी कि whether this particular starting material is useful for the various intermediates or that particular secondary metabolite. Then what is the significance of tracer technique? क्या importance है इसका? The tracing of biosynthetic pathway. तो पहला इसका importance क्या है? You can very easily trace the biosynthetic pathway which has been adopted by the plant. So by this can be done by incorporating the radioactive isotopes into the precursor or the starting material. तो जो आपका radioactive material है, radioactive isotope है, उसको आप क्या करेंगे, starting material में incorporate कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। For example, by incorporation of C14 carbon to phenylalanine. तो जो भी phenylalanine का हमारा स्ट्रक्चर है उसमें क्या करेंगे, एक कार्बन एटम phenylalanine का हटा के हम क्या करेंगे, उसमें C14 इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोजेनेसिस ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रूनासिन कैन बी ट्रेस्ड। तो आपने क्या किया, phenylalanine which is a starting material for this biogenesis of cyanogenetic glycoside, example प्रूनासिन। तो ये प्रूनासिन प्लांट के अंदर कैसे बन रही है, तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है क्या है, phenylalanine। तो हमने क्या किया, phenylalanine अलग से ले लिया और उसका जो एक कार्बन एटम है उसको हमने क्या किया, रेडियो लेबल्ड कर दिया। अब ये क्या करेगा, phenylalanine as such the plant body it is generating phenylalanine itself, but again a parallel pathway will be generated by you by introducing this radio labeled phenylalanine। और फिर आप इसकी स्टडी करेंगे कि प्रूनासिन ये हमारा बीच में क्या क्या इसके इंटरमीडिएट्स वगैरह बन रहे हैं, वो आप ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, दैट इज द लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड कैन आल्सो बी डिटरमाइंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, where it is getting generated and in how much quantity the compound is generated, that can also be determined in the biological system. For example, if location and quantity of glucose is determined in the biological system, so you have to determine where this glucose is located in the biological system, that is plant, and what is the quantity of this glucose in the plant, so that can be determined, that is C14 लेबल्ड ग्लूकोज में भी यूज। तो जो आपके पास सिंपल ग्लूकोज होता है उस सिंपल ग्लूकोज को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको रेडियो लेबलिंग करानी पड़ती है विद द C14 कार्बन। द लेबल्ड ग्लूकोज बीइंग केमिकली indistinguishable from the native glucose, it will mix completely with available glucose and pose in the body of organism study। तो इसमें क्या है कि नॉर्मल ग्लूकोज और इस ग्लूकोज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, खाली क्या डिफरेंस हुआ, ये आइसोटोप लगा दिया आपने, ठीक है। वो जो सिंपल कार्बन एटम था आपका C12 वाला, उसकी जगह आपका क्या चला गया, C14 कार्बन एटम आ गया, ठीक है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इट विल फॉलो द सेम पाथवे एज द नॉर्मल ग्लूकोज इज फॉलोइंग, ठीक है। बोथ लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन टिश्यूज कैन बी डिटरमाइंड बाय रेडियो एक्टिव एसे। लेकिन जो सिंपल वाला अगर ग्लूकोज लेंगे, अगर हम उसकी डिटर्मिनेशन करना चाहेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने उसको रेडियो लेबलिंग करके और पाथवे उसने सेम अडॉप्ट कर लिया है, देन यू कैन गो फॉर फर्दर द रेडियो एक्टिव एसे। तो इस रेडियो एक्टिव एसे से हम क्या कर पाएंगे कि क्या लोकेशन है उसकी ग्लूकोज की और कितने क्वांटिटी में ग्लूकोज उसमें बन रहा है डिफरेंट टिश्यूज में, दैट यू कैन डू। तो पहला इसका हो गया ट्रेसिंग ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे, दूसरा हो गया आपका the location and quantity of the compound can also be determined in the biological system. Then third one is
different tracer elements for the study of different not the different tracer elements are there for different studies. तो एक ही ट्रेसर एलिमेंट जो है वो सभी स्टडीज के लिए नहीं यूज किया जा सकता, इसका कहने का मतलब ये है। दैट इज फॉर एग्जांपल फॉर स्टडी ऑफ प्रोटीन, एल्कलॉइड, अमाइनो एसिड, इसमें क्या चीज कॉमन है? प्रोटीन में भी आप नाइट्रोजन पाएंगे, एल्कलॉइड में भी नाइट्रोजन पाएंगे और अमाइनो एसिड में भी नाइट्रोजन पाएंगे। सो हियर द नाइट्रोजन एटम इट गिव्स मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देन द कार्बन एटम। तो जब आप इसमें जो भी स्टार्टिंग मटेरियल इसमें यूज करने वाले हैं, जिसकी भी रेडियो लेबलिंग कराने वाले हैं, ठीक है, तो रेडियो लेबलिंग इसमें अगर आपने कार्बन एटम की कर दी और फिर आप सारी चीजें उस प्लांट में पढ़ना चाहेंगे, स्टडी करना चाहेंगे, तो दैट विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज इसमें जो मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है? नाइट्रोजन एटम। तो हमको क्या कराना पड़ेगा, इस जो भी इसमें आप कंपाउंड इसमें प्रिकर्सर उसका या कोई इंटरमीडिएट उसको रेडियो लेबल कराना चाहते हैं, तो उसकी रेडियो लेबलिंग आपको किससे करानी पड़ेगी? नाइट्रोजन एटम उसका कराना पड़ेगा, नॉट द कार्बन और सम अदर एलिमेंट। देन फॉर द स्टडी ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस, ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में आपने पहले उसमें पढ़ा था, 4th सेमेस्टर में उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड एंड सी ग्लाइकोसाइड्स वर देयर, दैट लिंक डिपेंडिंग अपॉन द लिंकेजेस। तो हियर तो अगर आपका ग्लाइकोसाइड लिंकेज आप ओ वाला पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको रेडियो लेबलिंग किसकी करानी पड़ेगी? ऑक्सीजन की। इसी तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस अगर आप एन वाला पढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू रेडियो लेबल द नाइट्रोजन एटम। तो सिमिलरली अकॉर्डिंगली यू कैन रेडियो लेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन फॉर द स्टडी ऑफ टर्पिनॉइड्स, ऑक्सीजन एटम इज रेडियो लेबल। तो इस तरह से हर एक स्टडी के लिए अलग अलग ट्रेसर्स यूज किए जाते हैं, नॉट द कि हर एक में हम कार्बन को ही रेडियो लेबलिंग करा दें, ठीक है। देन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ट्रेसर टेक्निक? द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन मस्ट बी सफिशिएंट सो एज टू विथस्टैंड रेजिस्टेंस विद डाइल्यूशन इन द कोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये आपको पता है कि जो भी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया था वो धीरे धीरे क्या होगा, डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट हो रहा है फॉलोइंग द मेटाबॉलिज्म। तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका डाइल्यूशन होता जाएगा। तो अगर डाइल्यूशन होता जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो जो कंसंट्रेशन हमने लिया था दैट हैज डाइल्यूटेड सो मच दैट वी आर नॉट एबल टू ट्रेस इट, ठीक है। तो हमें जो स्टार्टिंग मटेरियल का कंसंट्रेशन लेना है वो सफिशिएंट होना चाहिए सो दैट ऑन डाइल्यूशन आल्सो वी आर एबल टू ट्रेस। The labeled compound must be involved in the synthesis reaction। तो जैसे कि अभी आपको ऊपर बताया है कि अगर हमने क्या कहते हैं इसमें नाइट्रोजन था, दिस वाज मोर इम्पोर्टेंट ओवर हियर देन कार्बन। तो जो भी हमारी बायोसिंथेसिस हो रही है, इन दैट बायोसिंथेसिस दैट पर्टिकुलर एटम इट मस्ट बी इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस। ऐसा ना हो कोई ऐसा हाइड्रोजन को कर दिया लेकिन उसकी इतनी जरूरत ही नहीं है उसमें, तो पता लगा आपको सारा एक्सपेरिमेंट आपका बेकार हो गया। इस तरह से आपको यू हैव टू सी कि विच पर्टिकुलर एटम इज मस्ट, दैट पर्टिकुलर एटम or that particular compound it must be involved in the synthesis of a reaction, then only you radio label it. Then the labeled compound must be harmless to the system to which it is used। तो जो भी आप कंपाउंड यूज कर रहे हैं फॉर द रेडियो लेबलिंग दैट शुड बी हार्मलेस टू द सिस्टम। ऐसा ना हो प्लांट को ही डिस्ट्रॉय कर दे, तो आप क्या स्टडी कर पाओगे, ठीक है। द प्रॉपर लेबलिंग इज रिक्वायर्ड। फॉर प्रॉपर लेबलिंग फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द कंपाउंड मस्ट बी नोन। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग मटेरियल आपने लिया था शिकमिक एसिड पाथवे या जो भी आपका ये है अमाइनो एसिड पाथवे, ठीक है, तो उसमें जो भी हमारे प्रिकर्सर्स हम यूज कर रहे हैं तो उसकी फिजिकल और केमिकल नेचर जो है हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपरली रेडियो लेबलिंग कर पाएंगे। ये नहीं कि कोई भी उठा के एटम हमने कर दिया। अनलेस अंटिल वी नो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ अवर कंपाउंड then only we can do the proper labeling। the tracer it should be highly pure। तो जो भी हम ट्रेसर यूज कर रहे हैं दैट इज रेडियो आइसोटोप यूज कर रहे हैं हम, वो प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। the रेडियो आइसोटोप और the रेडियो एक्टिव आइसोटोप with greater half life period is preferred। तो जिसकी सबसे ज्यादा हाफ लाइफ होगी वही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपका जो सिंथेसिस हो रही है, बायोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में, ऐसा नहीं कोई 1-2 घंटे में हो जाएगी, ठीक है।
So it takes lot of time, maybe it takes 1 month, 2 month, 3 months, whatever it is. ठीक है, तो for that you have to select a radioisotope which has greater half life period. For example, if you take C10 or C11, ठीक है, the half life period for C10 is around 8.8 second और maximum it goes to 20 minutes. ठीक है, तो 20 मिनट में ये क्या होगा, इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो आप क्या ट्रेस कर पाओगे. लेकिन अगर हम इसको कौन सा आइसोटोप लेते हैं, C14 का, तो दिस C14 कार्बन एटम इट हैज half life period of 5000 years. तो दिस इज मोर प्रेफर्ड. तो इसलिए हम रेडियो लेबलिंग किसकी कराते हैं, C14. ये हमको देखना पड़ेगा कि हाफ लाइफ पीरियड हमारे आइसोटोप का कितना है. अगर 20 मिनट या 1 घंटा, 2 घंटा, 4 दिन, 5 दिन अगर ये लेंगे तो आपकी स्टडी बेकार है. यू कैन नॉट स्टडी इट. सो दिस इज क्वाइट गुड. 5000 क्वाइट नहीं, मोर देन एनफ. सो सम बेसिक टर्म्स ऑन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं फिजिक्स में. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रेसर टेक्निक, वी विल जस्ट सी द बेसिक्स इन्वॉल्व इन दिस tracer technique. That is isotopes we are talking about. So what are isotopes? Isos means equal and topos means place. That is at the same place, which means different isotopes of same element, they occupy the same place in the periodic table. ये आपको पता ही है. The same atomic number but different atomic weight. तो ये जो एटम्स हैं हमारे, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक वेट इसका क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, so we have C12 carbon atom, we have C13, we have C14. So these are the 3 isotopes of carbon. The number of protons in all these 3 remain same, that is C6 है. ये सारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसमें C6 है, लेकिन क्या चीज डिफर कर रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो इसमें है पहले वाले में, दैट इज 6. तो 6 + 6 दैट बिकम्स 12. तो एटॉमिक वेट इसका 12 हो गया. इसी तरह से दूसरे वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7, प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, तो टोटल मिला के हो गया आपका 13. तो एटॉमिक वेट इसका हो गया 13. तो थर्ड वाले में 8 + 6, तो दैट बिकम्स 14. तो इस तरह से the number of protons is same in all the isotopes, but it is the neutrons which vary in all the isotopes. Then atomic weight, you know that atomic weight is equal to neutrons plus protons. Protons को you can say that it is a atomic number. And another example is hydrogen. Hydrogen में you have H1, H2 and H3. H3 को आप लोग कहते हैं ट्राइशियम, और H2 it is called as deuterium, and this is the hydrogen. But these are the isotopes of hydrogen. तो पहले वाले में जो H1 वाले में उसमें सिर्फ सिंगल प्रोटॉन होता है, you don't have any neutron here. And in the second one, that is deuterium, you have 1 proton and 1 neutron. In the third case, you have 1 proton and 2 neutrons. So protons, it remains the same in all the cases. It is the neutrons which changes. Now we have got 2 types of isotopes. ठीक है, तो first type of isotopes, these are called as radioactive isotopes, और इसको हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स. ठीक है, तो रेडियो आइसोटोप्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज जनरेटेड इट्स नेम फ्रॉम रेडियो. रेडियो मीन्स अ रेडिएशन. ठीक है, so radiation, these are emitted from these isotopes. Radiations are emitted from the isotopes. So these are actually the unstable isotopes, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा हाई एनर्जी होती है कि वो क्या करता है कि ये एनर्जी एमिट करता रहता है, so that it will get sometime a stable पोजीशन. ठीक है, तो अनस्टेबल से ये क्या कोशिश करेगा, स्टेबल बनने की कोशिश करता है. सो बेसिकली दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल. सो रेडियो आइसोटोप्स, these are the radioactive atoms with high energy. Very high energy is there, that is the radiations are there. Energy means the radiation, and this high energy, this is emitted in the form of alpha particles, beta particles और गामा पार्टिकल्स. ठीक है, जो एनर्जी है इसकी किस फॉर्म में रेडिएट होती रहती है, रिलीज होती रहती है, अल्फा, बीटा और गामा के फॉर्म में. दैट इज डीके is taking place with the emission of radiation, that is alpha, beta and gamma forms to achieve the stable form. So radioisotopes, these are highly unstable, and they will try to achieve the stable form by emitting or by decaying
into alpha, beta or gamma particles. For example, H3, that is tritium, it emits beta radiation. C14, it also emits beta radiations. Sulfur, it also emits beta radiations. And iodine, it emits gamma. इसका मुझे मिला नहीं था, I have written, but this is also a radioisotope, and these are unstable. Now, second type of isotopes are the stable isotopes. So they are highly stable. That is, जब stable है तो ये लोग क्या करेंगे, ये कोई एनर्जी एमिट नहीं करेंगे. ऑलरेडी दे आर स्टेबल, दे नीड नॉट टू गेट अगेन वेरी मच स्टेबल. तो एग्जांपल्स आर H2, C13, N15, O18. So they do not emit any radiation and they are scarcely available in natural form. So basically, what are radio tracers? Radio tracers, these are used to trace the biosynthetic pathway, followed by labeling the atom. You have to label the atom with some radioisotopes. So इसको हम क्या कहते हैं? This is the presumed precursor if transferred to different intermediates and products also. The radioactivity showed, it confirms that the labeled precursor molecule has been utilized for the biosynthesis or not. तो ये जो पर्टिकुलर प्रिकर्सर जिसको हमने रेडियो लेबलिंग करी थी, तो इसकी रेडियो एक्टिविटी या बीच में जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं या प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी रेडियो एक्टिविटी हम मेजर करके देखेंगे. तो वी कैन टेल कि वेदर दिस पर्टिकुलर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द biosynthesis of that particular secondary metabolite or primary metabolite or not. Radio tracers, these are one or more atoms of presumed precursors. जो भी हमने presume किया हुआ है precursor कि ये particular precursor इस particular pathway में लगता है, उसमें एक या उसके दो atoms हम लोग क्या करते हैं, we replace them by the radioisotopes. जैसे कि आपके कोई भी radioisotopes आपने लिए, जो भी आपको as per procedure चाहिए वो लेंगे, and then they are used as a marker in the biosynthetic pathway. So for example, you have radio labeled this particular molecule. इसको हमने क्या किया था, रेडियो लेबलिंग कर ली और इसको हमने प्लांट में इंसर्ट कर लिया. फिर इसने क्या किया, जो भी मेटाबॉलिक पाथवे था प्लांट का उसको अडॉप्ट कर लिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ डी. तो अगर ये रेडियो लेबल्ड एटम जो हमने कंपाउंड लिया था जिसमें लेबलिंग कराई थी, if this particular compound is really utilized for the synthesis of compound D, so it will undergo this particular intermediates, and these particular intermediates will also show the radioactivity. तो ये हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप इनकी रेडियो एक्टिविटी की जांच कर सकते हैं. और क्या क्या मेथड्स होते हैं वो आपने आईपीसी में भी पढ़े होंगे. सिंटिलेशन क्या था उसका, कीगर मुलर काउंटर एंड ऑल, वो आप टेक्निक्स यूज करते हुए इसकी रेडियो एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं. तो दिस कंप्लीट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रेसर टेक्निक.